SUI online chemistry classes for class 12 English medium. In this chapter, alcohols and phenol was completed. The rest part of this chapter is only ethers. Okay, so today I am going to start the method of preparation of ethers and also their chemical properties. Student, what is ether? The formula of ether is ROR. For example, CH3OCH3. It is known as dimethyl ether. Likewise, C2H5OC2H5. It is diethyl ether, and also these type of ether in which R groups are same is known as simple ether. For next one is, for example, we take CH3OC2H5. It is ethyl methyl ether and also known as complex ether because R group are different in this ether. When the R groups are same, known as simple ether. When the R groups are different, known as कॉम्प्लेक्स ईथर. एंड ये जो ईथर है वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? एरोमेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर्स में आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल एरोमेटिक ईथर क्या होगा? एरोमेटिक ईथर इज C6H5OCH3. Okay, in this aromatic ether is name is anisole and R group different है, so it is also known as complex ether. So some ethers मैंने यहाँ पे आपको स्टडी करवाए. कौन से? डाइमेथिल ईथर, डाइएथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर एंड इसको बोलेंगे मेथिल फेनिल ईथर, also known as anisole. So student, let's start the methods of preparation of ether. Number one is by विलियमसन सिंथेसिस. ये रिएक्शन हम लोगों ने अल्किल हाइड वाले चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक, नंबर वन मेथड इज बाय विलियमसन synthesis. Williamson synthesis, it means alkyl halide, it means RX, react with sodium alkoxide NaOR. It gave, after heating it gave ROR, that is ether and NaX. For example, if we take C2H5Br, that is ethyl bromide, react with sodium ethoxide and also we take methoxide. So here we take ethoxide, so sodium ethoxide is NaOC2H5. It is sodium ethoxide. When it is treated with ethyl bromide, what we get? ROR, it means C2H5OC2H5, that is diethyl ether, and NaBr, that is sodium bromide. So this reaction is known as Williamson synthesis. इसको एल्किल हाइड चैप्टर में पढ़ चुके थे इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, एंड इसमें हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में. नाउ द सेकंड मेथड इज बाय अल्कोहल. Second method is by alcohol. When two molecules of alcohol is heated at 413 Kelvin temperature, it gives ROR after the removal of water. इस रिएक्शन को अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं. रिमेंबर स्टूडेंट, it is the dehydration of alcohol and it is the temperature based reaction. हम लोगों ने मैकेनिज्म भी पढ़ा था. When alcohol is heated at 443 Kelvin temperature, then it give alkene, and when alcohol is heated at 413 Kelvin temperature, it give ether after the removal of water. So the reaction name is dehydration of alcohol. So in the dehydration of alcohol, when alcohol is treated at 414 Kelvin temperature, it give ether. For example, if we heated two molecule of C2H5OH, that is ethyl alcohol, it is ethyl alcohol heated at 413 Kelvin temperature, it give diethyl ether, ROR, C2H5 and OC2H5. C2H5, OC2H5, that is diethyl ether and water. It is the second method for the preparation of alcohol. Now move to third method by
आइसोएल्केन से बना सकते हैं, ऑल्सो नोन एज एल्किल हैलाइड ट्रीटेड विद सिल्वर ऑक्साइड दैट इज Ag2O। ओके, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टूडेंट हम लोग पढ़ चुके हैं, दो अलग अलग सेपरेट मैकेनिज्म था, एक में एल्कीन फॉर्म हो रहा था, एक में ईथर फॉर्म हो रहा था। ओके, एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म था because this reaction is heated at in the presence of H2SO4। okay, now while alcohol is done, third method is by Ag2O, silver oxide। okay, now we take two molecule of iodoalkane, that is C2H5I and C2H5I। it is ethyl iodide, it is heated with silver oxide that is Ag2O। after heating it gives two molecule of AgI and what we get C2H5O C2H5 that is diethyl ether, C2H5O diethyl ether plus two molecule of silver iodide that is AgI। so these all are the methods of preparation of ether। now we move to chemical properties of ethers। okay, let's start student chemical properties of ether। chemical properties of ether, number 1 reaction with Cl2। remember student ये reaction जो है इसकी two condition है, when react with Cl2, ether react with Cl2 in the presence of sunlight or light and in the presence of dark। तो there are two reaction, एक की कंडीशन है व्हेन हम इसको डार्क में कराएंगे और दूसरा जो है हम इसको लाइट की प्रेजेंस में कराएंगे, Hnu की प्रेजेंस में कराएंगे। सो क्या रिजल्ट रहता है देखिए, इफ वी टेक डाइएथिल ईथर दैट इज द CH3 CH2 OCH2 CH3, it is diethyl ether। diethyl ether react with Cl2 in the presence of dark। so what happens student, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप is taken as 0 and the carbon attached with functional group is known as alpha carbon and the hydrogen of alpha carbon is known as, the hydrogen attached with alpha carbon is known as alpha hydrogen। so here there are two alpha carbons are present because functional group is 0, we taken as 0 and 0 से जो attached होता है carbon that's known as alpha carbon and the hydrogen attached with alpha carbon is known as alpha hydrogen। so here we have four alpha hydrogen। okay, 0 से attached carbon को alpha carbon and जो alpha carbon से hydrogen attached है उनको क्या बोलेंगे, alpha hydrogen। तो first of all we take two molecule of Cl2, यहाँ से कोई भी एक alpha hydrogen replace हो जाएगा with Cl and यहाँ से minus HCl निकलेगा। सपोज मैंने यहाँ से एक HCl, एक H को Cl के साथ निकाल दिया और एक बॉन्ड जो खाली हुआ उसमें Cl लग गया। सो व्हाट वी हैव CH3 CHCl CHCl O CH2 CH3। इट्स नेम इज, बिकॉज अल्फा पे क्लोरो लगाया है, अल्फा क्लोरो डाइएथिल ईथर। It is alpha chloro diethyl ether, again it is treated with Cl2 in the presence of dark। what we get, another alpha hydrogen is removed with Cl और इस बार हम यहाँ से दूसरा अल्फा हाइड्रोजन लेंगे। so what we get CH3 CHCl O CHCl सिंगल बॉन्ड CH3। इट नेम इज, अल्फा पे भी क्लोरो लगा था, अब इसको मैंने अल्फा डैश बोल दिया। ओके, अल्फा रहेगा तो एक में ही आ जाएगा Cl। अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। सो एक रिएक्शन आपकी कंप्लीट हुई व्हेन Cl2 रिएक्ट विद ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क। तो डार्क में क्या होगा, यहाँ पे दो अल्फा कार्बन है, एक बारी एक अल्फा से निकल जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे Cl अटैच हो जाएगा और एक बारी सेकंड वाले अल्फा कार्बन से चला जाएगा, तो नाम क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन इन व्हिच डाइएथिल ईथर रिएक्ट विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, नोट डाउन दिस रिएक्शन।
Now the second reaction is CH3, oh sorry, we take diethyl ether. CH3, CH2, OCH2, CH3 react with Cl2 in the presence of Hb. ओके, जब हम ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में कराते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोजन्स हैं सबका सब्स्टिट्यूशन Cl से हो जाता है. Cl is substituted all these hydrogens. So how many hydrogen in this compound? 3 तो 5 6 7 8 10. There are 10 hydrogen in this compound. So we take here how many Cl2? Cl2 react करेगा सनलाइट की प्रेजेंस में, 10 HCl रिमूव हो जाएंगे. So here we take 20 Cl because 10 तो इसमें लग जाएंगे, 10 H गया तो 10 Cl यहाँ के लिए चाहिए, और जो 10 H निकले उसके साथ तो we take 10 Cl2, 10 to the 20. So what we get? CCl3, CCl2, O, CCl2, CCl3. What is the name of this product student? यहाँ पे हर कार्बन के पास क्लोरो आ गया है. इट्स नेम इज परक्लोरोडाइएथिल ईथर. इसका नेम है परक्लोरो डाइएथिल ईथर. सो ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट हुई. इंपॉर्टेंट रिएक्शन बिकॉज वेरिएशन है. डार्क में कुछ और प्रोडक्ट मिल रहा है, लाइट में कुछ और प्रोडक्ट मिल रहा है. कि यहाँ पे ये दोनों लाइट में डार्क में क्या कर रहा था, पहले एक अल्फा H निकल रहा था विद Cl, फिर सेकंड स्टेप में दूसरा जो अल्फा डैश था उसमें से तो निकल रहा था. यहाँ पे हम 20 Cl लेंगे, यानी कि इट मींस 10 Cl2 लेंगे और उसको रिप्लेस करेंगे, परक्लोरोडाइएथिल ईथर बनेगा. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट रिएक्शन. Reaction with hydrogen halide. Reaction with hydrogen halide means HX. Okay. ROR, यहाँ पे भी स्टूडेंट 2 रिएक्शंस हैं. एक कोल्ड का रिएक्शन है और एक हॉट का, हीट का रिएक्शन है. कोल्ड इट मींस व्हेन वी टेक कोल्ड HX एंड व्हेन वी टेक दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट. जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा और कोल्ड की अलग रिएक्शन. तो एक एक लेते हैं. When ROR ईथर, इसको मैं बॉन्ड के फॉर्म में बनाती हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को. ROR react with HX एंड द कंडीशन क्या है, हमने यहाँ पे ठंडा HX लिया है, कोल्ड HX लिया है. ईथर के केस में आप इसको यहाँ से ब्रेक करोगे या यहाँ से ब्रेक करोगे, यानी कि एक यूनिट निकल के आएगा आपका R और सेकंड यूनिट निकल के आएगा RO. ओके, तो इसमें यहाँ पे तो मैंने R सेम ले रखा है. अगर दोनों R डिफरेंट है तो जो R छोटा होगा उसके साथ आप हैलाइड पार्ट को लेके जाओगे. ओके, और उस R पार्ट के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्टूडेंट, एक तो आपका अल्कोहल बनेगा, जो मैंने अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया तो ROH एंड एक पार्ट निकलेगा RH. ये जो RX के साथ जो R पार्ट जाएगा, इफ हमारे पास अगर R ग्रुप क्या है डिफरेंट है तो वो डेफिनेटली R पार्ट छोटा होगा. फॉर एग्जांपल इफ वी टेक डाइएथिल ईथर, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डाइएथिल ईथर रिएक्ट विद कोल्ड HX, में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखिए CH3CH2 OCH2 CH3 because both R groups are same. दोनों R ग्रुप क्या है, सेम है. क्या हमको रिएक्शन फाइंड ऑब्टेन होगा, क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, दैट इज C2H5X एंड ये क्या बन जाएगा C2H5OH. सो वन मॉलिक्यूल ऑफ एथिल अल्कोहल दैट इज C2H5OH एंड वन इज एथिल क्या लिया है, HX लिया है. सो वी टेक हियर HBr फॉर एग्जांपल. सो यहाँ पे मिल जाएगा C2H5Br, ethyl bromide and ethyl alcohol. Now move to next example. In this reaction we take ethyl methyl ether, for example CH3OC2H5 react with HBr in the presence of cold. So small R group which is CH3 here, it is replaced with Br and form methyl bromide and we get C2H5OH. समझ गए स्टूडेंट, अगर R ग्रुप आपके डिफरेंट होंगे तो जो R छोटा होगा वो हैलाइड के साथ निकलेगा. रीजन जो यहाँ पे हैलाइड जो है बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, Br नेगेटिव, तो रेस्ट छोटे पार्ट पर अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देकर अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लेगा. नाउ यहाँ पे हम फिर
नेक्स्ट रिएक्शन किस पे आ रहा है, हॉट पे। ये कोल्ड की रिएक्शन है, एक हमको अल्कोहल मिलेगा और सेकंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हैलाइड मिलेगा। अब हम यही रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में कराएंगे। ओके, सेम रिएक्शन हम यहाँ पे कोल्ड ना लेके हीट कराएंगे, देन यहाँ पे हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ हैलाइड मिलेगा, यानी कि 2RH। सो आल्सो हमको यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूव हो जाएगा। ओके, नाउ वी टेक एग्जांपल दैट इज CH3 CH2 OCH2 CH3, that is diethyl ether, react with 2 molecule of HCl. After heating it gave 2 molecule of ethyl chloride, that is 2C2H5Cl, and water is replaced. Suppose R group are not same, for example CH3OC2H5, it react with 2HCl, then it gives CH3Cl plus C2H5Cl and 1 molecule of water. Okay, नाउ ये दोनों रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी। पहला रिएक्शन हम लोगों ने क्या किया था, Cl2 के साथ कराया, उसके दो कंडीशन थे, एक था आपका डार्क में, एक था लाइट में। सेकंड रिएक्शन हम लोगों ने हाइड्रोजन हैलाइड से कराया, इसका भी 2 कंडीशन था, एक था कोल्ड में, एक था हॉट में। कोल्ड में हमको एल्किल क्लोराइड एज वेल एज अल्कोहल मिल रहा था, और जब हम इसको हीट की प्रेजेंस में करा रहे थे तो हमको सिर्फ एल्किल हैलाइड मिल रहा था। ओके, नाउ मूव टू थर्ड रिएक्शन। रिएक्शन विद वाटर, और वाटर के साथ इसको बॉईल कराते हैं। ओके, रिएक्शन विद वाटर, we take example here CH3 CH2 OCH2 CH3, that is diethyl ether, react with HOH, बॉईल कराएंगे। यहाँ पे स्प्रिंग ये बॉन्ड आप ब्रेक कर देंगे और यहाँ से एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ से एक यूनिट निकल के आएगा CH3 CH2, एक यूनिट निकल के आएगा CH3 CH2O। तो देयर आर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल्स। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल, दैट इज C2H5OH। इफ R ग्रुप आर नॉट सेम तो हमको मिल जाएंगे 2 मॉलिक्यूल अदर अल्कोहल मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आप ले लिया यहाँ पे CH3OC2H5 और इसको मैंने वाटर के साथ बॉईल कराया, तो एक मिलेगा मेथिल अल्कोहल, दैट इज CH3OH, एक मिल जाएगा एथिल अल्कोहल, दैट इज C2H5OH। तो अल्कोहल्स बन जाते हैं व्हेन ईथर इज ट्रीटेड इज बॉइल्ड विद वाटर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। Reaction with HCl as well as H2SO4. Next chemical property is reaction with HCl या हम H2SO4 दोनों से करा के देख लेंगे। Number 1 is HCl. Okay, HCl react with C2H5 OC2H5. In this reaction, the lone pair present on oxygen atom of ether oxygen attacked on H plus and it removed as Cl minus. So what we obtained here, क्या मिला हमको, C2H5 OC2H5 ने connect with H and throw their lone pair, because इसने lone pair से H को जोड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन हाफ पॉजिटिव चार्ज, सो आप ब्रैकेट में भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। और Cl कैसे रिमूव हुआ है, एज अ Cl नेगेटिव, क्लोराइड आयन निकला है। इसका नेम क्या है, ऑक्सोनियम क्लोराइड। इतने पार्ट को ऑक्सोनियम कहते हैं, ऑक्सोनियम क्लोराइड। लाइकवाइज H2SO4 कैसे प्रेजेंट रहता है, H plus HSO4 माइनस में। ओके, इसका रिएक्शन हम कराएंगे C2H5 OC2H5, सेम रिएक्शन है, लोन पेयर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन एटम अटैक ऑन H plus and HSO4 माइनस, ऐसे निकल जाएगा, पहले ही मैंने दिखा दिया HSO4 माइनस के फॉर्म में। सो यहाँ पे क्या मिल गया हमको, ऑक्सोनियम C2H5 OC2H5 पे प्लस चार्ज एंड HSO4 माइनस, सो इसका नेम क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। Student, in this reaction diethyl ether act as a Lewis acid because it donate their electron pair. नहीं, sorry student, in this reaction it act as a nucleophile. जो लुईस एसिड की तरह फॉर्म करेगा वो when it react with atmospheric oxygen। नंबर नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे क्या है,
HCl लिया, H2SO4 लिया, लोन पेयर ने H+ पर अटैक किया और ये पूरा सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा। इतने पार्ट को ऑक्सोनियम कहते हो, हाइड्रोजन सल्फेट, इतने पार्ट को ऑक्सोनियम बोलेंगे, दैट्स क्लोराइड। ओके, नाउ मूव टू रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। यहां से कर देंगे atmospheric oxygen as well as BF3 से भी, when it react with boron trifluoride it also act as a Lewis acid, like for example when we take BF3 here, boron have vacant electron, see student fast, the electronic configuration of boron is 1s2 2s2 2p1, 5 होते हैं ना, 2 2 4 1 5। what is the valence shell, that is 2s2 में 2 electron, 2p1 में 1 electron, after exciting it 1 electron यहाँ पे आ जाएगा। इन दी फॉर्मेशन ऑफ F3 एक F यहाँ पे आ जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर डालेगा, यहाँ पे अनपेयर डालेगा, यहाँ पे अनपेयर डालेगा। सो इट इन BF3 मॉलिक्यूल कंपाउंड बनने के बाद भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है एंड इट हैव 6 वैलेंस शेल इन द 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल एंड आल्सो 1 वैकेंट ऑर्बिटल। सो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसमें ये ऑक्सीजन के लोन पेयर बड़े आसानी से इसको अपने दे सकता है और ये कैपेबल है कि ये रख भी ले बिकॉज़ इट हैव 1 वैकेंट ऑर्बिटल। सो हियर it act as a Lewis acid because it accept electron and it act as a Lewis base। यहाँ पर ये अब कैपेबल है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं ना इसको, तो it act as a Lewis base and it act as a Lewis acid। So ether in this reaction, dimethyl ether act as a Lewis base and BF3 also, as you all know, it act as a Lewis acid because it can capable to accept electron pair। What we get? C2H5 OC2H5, बेटा इसमें यहाँ पे दिया हुआ है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा BF3 के साथ और इसका नेम हो जाएगा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट। इतने पार्ट को इथरेट कहते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट। सो ये रिएक्शन हो गई, reaction with BF3। ये कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन with BF3 and in this reaction dimethyl ether act as a Lewis base and BF3 act as a Lewis acid। Reaction with CH3COCl, when dimethyl ether that is CH3O diethyl ether that is C2H5 CH3 CH2 करके लिख लेते हैं, OCH2CH3 react with CH3COCl। What we get स्टूडेंट, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे हम इन दोनों में से एक बॉन्ड को ब्रेक कर लेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा? CH3CH2। ओके, एक यूनिट हमको क्या मिला? CH3CH2। एक यूनिट क्या मिल जाएगा? CH3CH2O। यहाँ पे एक यूनिट क्या मिला? CH3CO और एक यूनिट मिला Cl। सो इसको इससे अटैच कर देंगे, दैट इज CH3CH2Cl, इसको इससे अटैच कर देंगे, दैट इज CH3COO2H5। ओके, सो मुझको हम क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट में? CH3CH2Cl प्लस CH3COOC2H5। This reaction is known as acylation reaction because react with acyl chloride and what we obtained ethyl acetate and its name is ethyl chloride। ठीक है, ये रिएक्शन का नेम क्या था? रिएक्शन विद CH3COCl that is acyl chloride। Now move to next reaction। Reaction with acetic anhydride। Reaction with what is acetic anhydride? That is CH3COO CH3CO। Okay. Dye, its name is acetic anhydride। CH3 CH2 OCH2 CH3 react with CH3CO OC double bond O CH3। What we get? एनहाइड्राइड में भी स्टूडेंट या तो ये बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे या ब्रेक, एक यूनिट निकल के आता है CH3COO, एक यूनिट निकल के आएगा CH3CO।
CO। यहाँ पे भी आप ये दोनों बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो व्हाट वी गेट निकल के आएगा CH3CH2। यहाँ से आप ये ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए CH3CH2O एंड एक निकल के आया CH2CH3। यहाँ पे एक यूनिट निकल के आया CH3COO, एक यूनिट निकल के आया CH3CO। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल एसिटेट हमको फाइंड हो रहे हैं। क्यों? CH3CH2 COOCH3 एंड CH3CH2 यहाँ पे एक होगा दैट इज COOCH3। सो हियर हमको क्या मिल जाएगा 2 molecule of CH3CH C2H5 COOCH3 that is ethyl acetate। यहाँ पे हमको 2 molecule of ethyl acetate मिल जाएंगे, 2 molecule of ethyl acetate ना। ये सारी रिएक्शंस जो हैं अभी तक हम लोगों ने एलिफैटिक ईथर की थी। नाउ वी स्टार्ट टू रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक ईथर। और एरोमेटिक ईथर में हमको पढ़ना है एनिसोल। और एरोमेटिक ईथर में जो हम 5 जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस है वो क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो एरोमेटिक ईथर का पढ़ना है हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिड्रिक क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ओके, नाउ वी टेक वन बाय वन। फर्स्ट इज हैलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक ईथर दैट इज एनिसोल। एरोमेटिक ईथर में हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं? C6H5COCH3 OCH3 that is anisole. Now first reaction is halogenation. Halogenation. In halogenation, anisole, it means OCH3 react with Br2 water. If we take Br2 water, then what we get? OCH3 Br. Student, one point is to be noted that anisole is a ortho para directing group because oxygen have lone pair of electrons. It donates their electron pair to ring and increases the electron density at ortho and para position. So electrophile attached to that position. Therefore, anisole is a ortho and para directing group. In this reaction, ring is so active, एक रिंग में ही आके 3 सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और क्या मिलेगा हमको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिसोल। 2,4,6 ट्राइब्रोमो anisole. Same reaction is taken in the presence of carbon disulfide. If we take anisole react with Br2 in the presence of carbon disulfide, then 2 isomers are obtained. One is ortho isomer and second is para isomer. Okay, OCH3 और यहाँ पे आप Br यहाँ पे लगाएंगे प्लस OCH3 Br लाएंगे para। So it is all about the halogenation of anisole. Note down this reaction. Next reaction is nitration. Second reaction is nitration. What is the condition of nitration? Reaction with HNO3 in the presence of H2SO4, both are taken as concentrated. Okay. So यहाँ पे मैंने लिया anisole. Anisole is a OCH3. It reacts with HNO3 in the presence of H2SO4. What we get? NO2 ऑर्थो पे लाएंगे एंड एक आइसोमर मिलेगा पैरा पे। इनका नेम क्या हो जाएगा? वाटर इज आल्सो निकलेगा। क्या नेम हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल एंड पैरा नाइट्रो एनिसोल। Ortho nitroanisole and para-nitroanisole. Now move to sulfonation. In sulfonation, H2SO4 is taken in the presence of H2SO4. So here H2SO4 ही लेते हैं, कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। देन यहाँ पे क्या मिलेगा? ऑप्टेन होगा SO3H प्लस एक पैरा आइसोमर में मिलेगा SO3H।
So this is all about the nitration, sulfonation and the halogenation. क्या बचा स्टूडेंट? Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts alkylation and acylation में क्या कंडीशन होती है स्टूडेंट? आप पता चलना चाहिए, बिकॉज ये हम लोग कई जब भी एरोमेटिक कोई कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो उसमें ये 5 रिएक्शंस पढ़ ही रहे हैं. कंडीशन इज ऑलमोस्ट सेम, सब में कुछ सेम ही है. एल्काइलेशन में हम ये क्या पढ़ रहे हैं? एल्काइलेशन. एल्काइलेशन में CH3Cl is reacted in the presence of AlCl3. What we get? ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर मिलेगा, उसमें CH3 ग्रुप आ जाएगा. ओके, ऑर्थो मेथिल एनिसोल एंड वन क्या और ऑब्टेन होगा? पैरा मेथिल एनिसोल. यहाँ पे भी CH3 आएगा और ऑल्सो HCl निकल जाएगा. सो पैरा मेथिल एनिसोल. अगर हम यही एसाइलेशन कराते हैं, एसाइलेशन में anisole react with CH3COCl, that is acid chloride, तो acylation करा रहे हैं, and in the presence of AlCl3 what we get? कौन सा ग्रुप आता है? COCH3 ग्रुप आता है. नाम क्या हो जाएगा इसका? इसको छुपाया, that is anisole, it is acetophenone, priority acetophenone को देंगे तो इसको बोलते हैं methoxy. So ortho methoxy acetophenone and para methoxy acetophenone. Okay, so ये आपका ईथर बच्चों कंप्लीट हो गया है. मैटर ऑफ प्रिपरेशन एंड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट वीडियो से मैं आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड चैप्टर स्टार्ट करूंगी.